ذاتی مفاد چھوڑ کر کمروں سے نکل کر ہم نے اس تحریک کا حصہ بننا ہے بحیثیت کشتواڑی۔ بحیثیت کشتواڑی ہم جب ایک ہی آواز میں اپنی آواز کو بلند کریں گے تو یقیناً اعلیٰ حکام تک اسی طاقت کے ساتھ اسی شدت کے ساتھ یہ آواز پہنچے گی۔ فاروق صاحب کی ایک تقریر سن رہا تھا اور ویسے اتنے دنوں سے ہم نے سنی سب کی تقریریں، میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، عمر کے لحاظ سے میں بہت چھوٹا ہوں آپ سے، اور یقیناً جب عمر میری چھوٹی ہو تو آپ سے ایکسپیرینس یقیناً کم ہوگا، لیکن جہاں تک میرا اپنا تجربہ ہے ابھی تک، آپ نے جیسے ہی یہ فری موومنٹ کا آندولن چھیڑا، یہ تحریک چھیڑی، تو کشتواڑ کا ہر انسان، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی پنچایت سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، کسی بھی بلاک کا کیوں نہ ہو، کسی بھی تحصیل کا کیوں نہ ہو، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا، اے وطن تیری قسم تیرے نام پہ مرنا ہے تو بس مرنا ہے، میری مٹی سے عبادت کا یہ عہد وفا اس بار جو کرنا ہے تو بس کرنا ہے، اور خونے دل دے کے نکھاریں گے روحیں برگے گلاب، ہم نے اس گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ میں ڈی سی صاحب کا آرڈر پڑھ رہا تھا کچھ دن پہلے کا آرڈر، اپنی پاور کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں 163 DNS لگاؤں گا، 144 لگاؤں گا، یہ میری پاور ہے۔ ڈی سی صاحب ہماری بھی کچھ، اس جنتا کی بھی کچھ پاور ہے، آئین نے دی ہے، ذرا اس کو بھی پڑھ لیجئے گا۔ آرٹیکل 19A سب کلاس اے پڑھ لیجئے گا۔ آپ آرٹیکل 19 سب کلاس 2 پہ چلے گئے لیکن اے بھلا دیے۔ آرٹیکل 19 کلاس اے کہتا ہے سٹیزن، انڈین سٹیزن، باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، انڈین سٹیزن have a right to assemble anywhere، صرف وہ پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہونی چاہیے، پبلک، اور یہ پبلک جگہ ہے، پبلک پراپرٹی ہے یہ۔ چودھان ڈی سی صاحب، ادھورا قانون پڑھنا آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مائک بند کر دو یار، اس میں کچھ ڈی سی صاحب، ادھورا قانون آپ پڑھیں گے تو ہم پورا پڑھ کر سنائیں گے اور پڑھائیں گے اور سکھائیں گے۔ ہمارے پروجوں نے انگریزوں کے پنجوں سے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، اگر وہ تاریخ معلوم نہیں تو بتا دیں گے۔ تاریخ 15 اگست کی تھی اور سال 1947 کا تھا۔ ہمارے ملک میں ایک اور مہتوپورن دن 26 جنوری، اور 26 جنوری کے دن بھیم راؤ امبیڈکر کے دوارا بنائے گئے سمویدھان، جس میں 2 سال 11 مہینے اور 11 دن لگے تھے بنانے میں، اس آئین کو 26 جنوری 1949 میں لاگو کیا گیا تھا۔ یہ ڈیٹ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اسی سے مجھے معلوم ہے یہ فرمان کہیں اور سے آیا ہو تو ہم دکھی ہیں اس بات کو لے کر، لیکن آپ آرٹیکل 19 سب کلاس 2 پہ چلے گئے، آرٹیکل 19 سب کلاس اے پر آج غور و فکر کرنا۔ ہاں، آپ کے پاس یہ اختیارات ضرور ہے کہ آپ ریزنیبل ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں، بیکاز فنڈامنٹل رائٹ آرٹیکل 19 از ناٹ پرماننٹ ان دا نیچر۔ آپ ریسٹرکشن لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کو کچھ خدشہ ہے، کون لڑے گا یہاں آپس میں؟ بیوقوف ہے وہ کشتواڑی جو آپس میں لڑے گا؟ کس کو نہیں چاہیے بجلی؟ بتا تو دے، کون لڑے گا؟ کیوں لڑے گا؟ ہمیں پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا نا، ہم کیوں لڑے بھائی؟ آپ بند کمرے میں سازش بنا کر لڑانا چاہیں گے تو ہم اس کو بھی ناکامیاب بنا دیں گے انشاءاللہ۔ اور جعلی FIR، جعلی PSA کے ڈر سے آپ ہمیں ڈرانا چاہیں گے، ہم نہیں ڈریں گے۔ میں کوآرڈینیشن کمیٹی کے ان لوگوں کو جب میں نے دیکھا FIRs لگ گئی، عورتوں کو بھی نہیں بخشا،
नौजवानों को पहले टारगेट किया जाता है किश्तवाड़ की लीग और एफआईआर जाली एफआईआर के डर से आपको ये कहा जाता है कि ये मूवमेंट बंद कर दीजिए। डीसी साहब आप चले जाएंगे कल यहाँ से, ये किश्तवाड़ फिर भी हमारा रहेगा नहीं रहेगा। यहाँ डॉक्टर दिवांश यादव सर चले गए, उससे पहले अशोक शर्मा साहब थे चले गए, उससे पहले कितने साहब आए चले गए। आप भी अपनी अगली प्रमोशन जैसे मिल जाएगी चले जाएंगे, लेकिन हम किश्तवाड़ी तो यही रहेंगे ना, रहेंगे ना यही। इसलिए आप किश्तवाड़ की जनता को इसके साथ छेड़खानी ना करें। हम आपकी इज्जत करते हैं, आपके ओहदे की इज्जत करते हैं, आप हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उस ओहदे की इज्जत करना बहैसियत हिंदुस्तानी नागरिक होने के ये हमारा फर्ज बनता है। जहां हमारे हुकूक है वहीं हमारे ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाएंगे। जो किश्तवाड़ को डिवाइड करेगा हम उसके खिलाफ हैं, जो किश्तवाड़ को धोखा देगा हम उसके खिलाफ हैं, जो इस प्लेटफॉर्म को अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहेगा हम उसके खिलाफ हैं, जो किश्तवाड़ की फ्री बिजली मूवमेंट के खिलाफ है हम उसके खिलाफ हैं, है ना। ये मूवमेंट, ये तहरीक, इन नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, वाकई में मेरा सियासी प्लेटफॉर्म है। मुझसे लोग मांग रहे हैं राशन कार्ड, जॉब कार्ड, पता नहीं क्या क्या। जब मैं दे पाऊंगा लोग मुझे इज्जत करेंगे, नहीं दे पाऊंगा लोग मुझे दफन कर देंगे। सब पावर लोगों के पास, ये अखाड़ा हमने उसके लिए इस्तेमाल नहीं करना है। आप शेख जफर को यहाँ खड़ा होते देख रहे, एज अ लीडर मत देखें, एज अ किश्तवाड़ी मुझे देखें। और मुझे फख्र है कि मैं इस जिला से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मुझे फख्र है कि मैं मड़वा से आकर इस किश्तवाड़ में हजारों लोगों के बीच में रहकर बात कर रहा हूँ। मुझे फख्र है कि आप लोग इस वक्त अपने हकूक के लिए खड़े हो रहे हैं, और मुझे ये फख्र महसूस होगा तब भी जब तमाम तर किश्तवाड़ दुश्मन ताकतें एक होंगी और आप भी मुत्तहिद रहेंगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो एफआईआर लगी है हम इसका मुकाबला कोर्ट में करेंगे। हमारे पास न्याय है, अभी भी जिंदा है। हमारी जुडिशरी में ऐसे भी लोग हैं जो जिंदा हैं, और हर जगह पहुंचकर हर कानून के दरवाजे तक दस्तक देकर हम अपना इंसाफ हासिल करेंगे अगर इस दरवाजे पर हमें इंसाफ नहीं मिला। एक बात याद एक बात याद रखिएगा, ये आएंगे, घबराने की जरूरत, और प्रोटेस्ट हर वक्त जरूरी नहीं है कि इस तरह के लोग खड़े हो जाएं। इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मैं कमेटी मेंबर से कहना चाहूंगा। मैंने परसों जब वो ऑर्डर देखा मैं लाइव गया, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों की फोन कॉल आई, जनाब आप नहीं जाना। मैंने कहा अब जाऊंगा, जरूर जाऊंगा किश्तवाड़ का। और कोई ये ना सोचे गांव देहात में कोई मरवा में बिजली नहीं है, लेकिन सर्कुलर स्टेट में जारी कर दिया, और जैसे ही वहां अभी पोल खड़ा नहीं हुआ होगा, बल्ब लगा नहीं होगा, मीटर वाले आ जाएंगे। कोई ये ना सोचे कि आपके दरवाजे तक दस्तक ना दे, वो देंगे। एक सर्कुलर बना है, हम उस सर्कुलर के खिलाफ बोल रहे हैं। यहाँ कश्मीर में हमारी बहादुर माओ और हमारी बहादुर बहनों ने मीटर उठाकर फेंक दिए। हमारी बहनें बाहर निकली, बोली मीटर मत लगाओ, गरीब है। एफआईआर की धमकी आ गई और एफआईआर लग गई। अफसोस होता है मुझे कि ये दोहरा मापदंड, ये राइट टू इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट कहाँ गया? वहां तो कोई एफआईआर नहीं लगी, लेकिन किश्तवाड़ में लग गई। औरतों के ऊपर भी और मर्दों के ऊपर भी, नौजवानों के ऊपर भी, और नौजवान को तो पहले ही टारगेट किया जाता है, और ये कहा भी जाता है तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे किश्तवाड़ में कुछ नौजवानों ने अपना खून देकर इस डिग्री कॉलेज को लाया, और फ्री बिजली सैंक्शन पे अगर हम छोटे एफआईआर को डर गए तो हम मर गए। मैंने पहले कहा इस बार जो करना है तो बस करना है, इस बार जो करना है तो बस करना है, और मिलकर करना है, एक साथ खड़े होकर करना है। हिंदू और मुसलमानों ने करना है, माँ और बहनों ने और बुजुर्गों ने और दोस्तों ने, सबने मिलकर करना है। करेंगे ना इंशाअल्लाह। और आखिर में आपसे ये कहेंगे कि एफआईआर पीएसए तो डीसी साहब तक मेरा ये पैगाम पहुंच जाए। बहैसियत किश्तवाड़ी, आप जब अरेस्ट करने आएंगे तो वॉलंटियरली मैं पीएसए के लिए 2 साल जेल जाने के लिए तैयार हूँ। आप आइएगा, शौक से करिएगा, और हम किसी से अब डरने वाले नहीं है। पहली बार किश्तवाड़
पहली बार किश्तवाड़ इस तरह से लड़ने उठा है। क्या इस आवाज को हम दबने देंगे? हम तो मुजरिम बन जाएंगे, हम तो गुनहगार बन जाएंगे, हम तो हमेशा अपनी नस्लों के लिए जालिम बन जाएंगे। आप जालिम बनना चाहोगे तो घरों में रहो, लेकिन अपनी नस्लों को आबाद रखना चाहते हो और उन्हें कहीं देखना चाहते हो, कोई मकाम देना चाहते हो, तो सड़कों पर भी आना पड़ेगा, गलियों में भी आना पड़ेगा। और कल एक बहन ने वीडियो बनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा यही तो वुमेन एम्पावरमेंट है। डीसी साहब, आप वहां प्रोग्राम करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, वो तो प्रोजेक्टेड होता है। वुमेन एम्पावरमेंट वो है जब एक बहन ने बोला कि हम किश्तवाड़ के लिए लड़ेंगे, तो उस बहन की आवाज को सुना जाए। और हर बहन, हर माँ कश्मीरी में बोलो, सिराजी में बोलो, डोगरी में बोलो, हिंदी में बोलो, अरबी में बोलो, फारसी में बोलो, जो जुबान आपको है बोलो। हर 2 मिनट की हर तरफ से वीडियो आनी चाहिए और ये पूरे किश्तवाड़ में चलना चाहिए। और एक और चीज, मरवा वर्दन तो बिजली नहीं ना मर गए हम। दुख बहुत हुआ, तकलीफें बहुत हुई, लेकिन मर नहीं गए। हम इनको कहते हैं कि तुम मीटर लगाने के लिए आ रहे हो, हम कह रहे हैं हमें बिजली नहीं चाहिए। जब ये बाइकआउट का नारा लगेगा तो किश्तवाड़ उठेगा। इसी के साथ आप सबसे रुखसत होना चाहूंगा। डटे रहिएगा, लड़ने का इरादा नहीं है, लेकिन अपने हकूक छीन कर लेने का इरादा तो हम सबके अंदर होना चाहिए। कमेटी मेंबर की बहादुरी को देखकर मैं वाकई में मुतासिर हुआ और मुझे इस तरह के लोग बहुत पसंद है। जैसे आवाज उठाई वसीम साहब ने, फारूक साहब ने, जिया भाई हैं यहाँ पर, बाकी जितने भी लोग हैं, सब ने आवाज उठाई और इन सब की आवाज के साथ हम अपनी आवाज मिलाकर इनको ताकतवर बनाएंगे और ये चलेंगे आगे और किश्तवाड़ इनके पीछे चलेगा। शुक्रिया।